Assalamu alaikum. So, dear participants, so today we'll briefly try to understand the design of science textbooks and how it has to be taught, how it has to reach the last mile. स्टूडेंट्स तक ये कैसे पहुंचने चाहिए और ये क्या नियतों से बनाई गई है. We are going to discuss all these things inshallah. So I just had a question. Okay, so just keep this question in your mind and maybe you may answer it to yourselves. Why do you think science has to be taught in your school? ओके एंड इसको जो है दुनियावी नजर से मत देखिए, दोनों नजरिए से देखिए कि साइंस को क्यों पढ़ाया जाता है. ओके देखिए, द वन आंसर, द the answer that could be more relatable from our perception, from our perspective is the more relatable. नहीं आ रहा थोड़ा okay. Sorry, there was a concern that it wasn't audible, but I believe it's audible to most of us. There may be any technical glitch from one or two of the participants, but it is showing that it's audible to all. Alhamdulillah. So I'll come back. देखिए, साइंस का नजरिया हमारे स्कूल्स में, हमारी इंटेंशन हमारा ये है कि साइंस के जरिए हम अल्लाह की साइंस जो होती है, निशानियां जो होती है, उससे बच्चों को हम वाकिफ करें अल्लाह की मौजूदगी. देखिए, साइंस इज द सब्जेक्ट, इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट, आई मीन लाइक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट, conceptually, they could better recognize the signs of Allah. Signs, nishaniya, signs, signs of Allah subhanahu wa ta'ala in the universe. Okay, in the entire universe there are numerous signs of existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, not just the existence, how he is leading this universe, how he is fulfilling the needs of every creation. हर एक मखलूक की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे जरूरतें पूरे कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, ये सारी निशानियां, ये साइंस के जरिए हम बच्चों के जहन में डाल सकते हैं. राइट? ओके, तो इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं साइंस के जरिए. ओके, ये जो साइंस की जिसकी हम बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे दोनों चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया. कुरानिक आयतें जो निशानियां हैं, जिसको हम आयत, आयत जो कि एक प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब होता है साइन, वर्स, यानी कुरानी आया का मतलब है निशानी, अल्लाह की निशानी. हमने उसको भी इंक्लूड किया, विच आई एम गोइंग टू शो यू हियर ऑन द स्क्रीन. ओके, if you could see the one that you see in the pink color, ये जो content है, आप if you could see, okay, आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, we have spread out the earth, ये वाली जो आयत है. फिर उसके नीचे देखिए, then we extracted by this rain various kinds of plants for you. These are the direct Quranic verses with the quotations. तो देखिए, ये जो वर्स है, ये जो आयत है, ये आयत का मतलब हुआ निशानी. तो अल्लाह की निशानियों को बच्चों को हम समझा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो एक कुरानी आयत, उसके साथ साथ ये जो पिक्चर, ये जो साइंस का कंटेंट है, through this we intend to help them understand the signs of Allah subhanahu wa ta'ala in the universe, that is through his creations. राइट? कैसे अजीब व गरीब मखलूक है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, ये तमाम चीजें बच्चों को सीखना है. It doesn't mean that the children should be equipped only with the content. सिर्फ कंटेंट पार्ट नहीं, उसके साथ साथ ये दोनों चीजें पैरेलली होना है. Now I'll come down to the content. Fine. I need to change the screen for a while.
Okay, so I just wanted to share another file with you. It's been will be shared very shortly, inshallah. Meantime, let me tell you, okay, science. Why is the science being taught? Actually, I wanted to start our conversation, our interaction, with a lesson from grade 5, term 1 textbook. Uh, the name of the lesson is Science Process Skill. Science Process Skill. The uniqueness of our books की खुसूसियत ये है कि ये जो लेसन है ना साइंस के प्रोसेसिंग स्किल, यू विल नॉट फाइंड इन एनी करिकुलम थ्रू आउट इंडिया इंशाल्लाह। ओके, इंडिया में जितने जो भी आप कंपनी ले लीजिए, बड़े बड़े करिकुलम कहीं पे भी ले लीजिए, यू विल नॉट फाइंड द साइंस प्रोसेस स्किल इन विच वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, द साइंटिफिक थिंकिंग बच्चों में जो हम जहनों में डालना चाह रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हम लोग इससे कर रहे हैं, साइंस प्रोसेस स्किल्स के, साइंस की प्रोसेसिंग के लिए जो स्किल्स जरूरी है बच्चों को, हम एक कन्वर्सेशन के जरिए डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर वी टीचिंग इन दिस, द ब्रीफ जिस्ट ऑफ इट इज बेसिक साइंस प्रोसेस स्किल्स इज ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्किल इज ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गौर और फिक्र करना, कोई चीज को देखना। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक सी और लुक के बीच में अंतर है, डिफरेंस है। व्हेन यू यूज द वर्ड सी, देखना, लुक, देखना, बट देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स व्हिच मेक्स a huge distinction. See is when you look at something with not an intention, without an intention, without an attention. जहां ना तो attention है, ध्यान है, ना तो intention है, इसको कहा जाता है सी, देखो। लुक इज तदब्बुर, गौर से देखो, ऑब्जर्व करो। उसका इंटरचेंजेबल सिनोनिमस वर्ड्स वी कैन हैव इट एज ऑब्जर्व। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कुरान में बार बार फरमा रहे हैं कि गौर करो, पॉन्डर, तदब्बुर करो मेरी मखलूक पर, मेरी तख्लीक पर। तो इसीलिए साइंस में भी ये प्रोसेस स्किल होता है ऑब्जर्व, क्योंकि दैट्स द बेसिक स्किल टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि जब एक स्टूडेंट जब रिसेप्टिव होता है, जब वो अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करता है, तो ही कुड अंडरस्टैंड एंड ही कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। उसके ओके, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, फर्स्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज ऑब्जर्वेशन। उन्हें जब ऑब्जर्व कर पाया, तो उसका मेंटल पिक्चर, ही कैन आर्टिकुलेट, ही कैन एक्सप्रेस द थिंग्स। तो तो इसीलिए कीपिंग इन माइंड देयर आर अदर स्किल्स एज वेल, कम्युनिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेडिक्शन है, इन्फ्रेंस है। इस तमाम साइंस प्रोसेस स्किल्स है जो कि बच्चों को एक ग्रेजुएशन के लेवल पे सिखाई जाती हैं। हम उसको ये ग्रेड 5 यानी प्राइमरी के लेवल पर उसको कंसाइज करके ये बच्चे जो समझ पाते हैं और जो सीख पाते हैं। ओके, with that intention, we have introduced the first lesson to be as a science process skill, and that's to be made it very lively and interactive by a conversation. Okay, and now I'll be sharing the screen for that. If you could see this is the grade 4 term 1 book. Okay, and this is the content. If you could see, the first lesson is science process skill that I was talking about so far. Okay, and we are starting it with a conversation. Okay, and we are trying to relate it. Children, देखो भाई, बच्चे जो है बाहर निकलना पसंद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कन्वर्सेशन हम लोग रखे कि where teachers are accompanied by their friend, I mean like students are accompanied by the teachers, they are on a field trip to a nearby zoological park. There is an interaction between teachers and students. Fine. So during the interaction, they are coming across several things. देखिए अब वो interaction के दौरान उन्होंने कुछ observe किया. They have seen like elephants eating, okay, being grazing, lions eating flesh. तो ये लोग observation कर रहे हैं, और वो observation के बाद they are interacting. They are okay, questions उनके पास जो raise हो रहे हैं, वो अपनी teacher से clarify कर रहे हैं। तो ये बताने का मतलब है कि it's like a rehearsal. Okay, for them कि आप भी ऑब्जर्व करो अपनी सराउंडिंग से, और इसको आप समझो,
और इससे रिलेटेड जो भी इनके कंसर्न्स एंड क्वेरीज रहते हैं, दे कैन रीच आउट टू द टीचर्स, टू द पेरेंट्स, टू एनीबडी टू गेट देम क्लैरिफाइड. सो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स थे. उसी तरह यहाँ पे मेजरमेंट स्किल्स उसी तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों को. फिर क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, प्रिडिक्शंस है, हाउ थिंग्स आर बीन प्रिडिक्टेड, देन कम्युनिकेशन. ओके, तो and then finally the inference. These are the basic science processing skills which we intend to deliver at this stage. In addition to these other unique points of a particular book, you could see that कि यहाँ पे आप एक स्ट्रिप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेफ्ट पे, राइट साइड पे, आई थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. ओके, तो ये ऑटो सजेशन के तरह काम करेगी बच्चों को कि व्हेन दे कीप ऑन टर्निंग द पेज. ओके, दिस lesson is of around 8 pages, 7 to 8 pages. So every day when a child turns it for a week or less than that or more than that, so बार बार repeatedly बोल रहा, I think like a scientist, I think like a scientist. तो उसका okay, तो उसका जहन right, ये चीजें उसके अंदर फीड हो रही है कि भाई मैं साइंटिस्ट की तरह सोचता हूँ. Fine. Moreover, अब हम आएंगे इस लेसन से असेसमेंट्स के बारे में. देखिए असेसमेंट की इसकी खुसूसियत क्या है कि इफ यू कुड सी असेसमेंट ए और असेसमेंट बी, यहाँ पे दो कैटेगरीज में असेसमेंट्स हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझिए. कि असेसमेंट ए एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सेक्शन है. कॉम्प्रिहेंशन इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चे कितना कॉन्सेप्चुअली समझे उसको हम असेस कर रहे हैं, उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हाउ फार अ चाइल्ड हैज रियली अंडरस्टूड और इंटरनलाइज्ड द कंटेंट. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. a child could answer it simply. Whereas ये जो assessment B है, इसमें जो questions है ये higher order thinking skills से related है. Fine. So higher order thinking skills here refers to critical thinking है इसमें. Hello. इसमें yes please. So इसमें देखिए higher order thinking skills includes the questions on critical thinking, on analytical thinking. Okay, where children have been made to analyze. I'll read out some questions with you as well. So ये higher order thinking skills के बेस पे क्वेश्चन है. अब समझिए यहाँ पे ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, या फिर लेट्स गो विद अदर क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. चलिए, question number 5. Sahil's house is near the Koleru lake. He observes a huge flock of Siberian cranes flying towards the lake. We are trying to relate it, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम उसको everyday मतलब हमारे जो surroundings, हमारे जो observations, findings, उससे relatable दे रहे हैं questions. Okay, और हमारे I mean like we are making it contextual learning, उसको contextual learning में लेकर आ रहे हैं कि Sahil's house is near Koleru lake and he sees a huge flock of Siberian cranes flying towards the lake just before the beginning of winter. Sahil was curious to find an answer for his observations. तो यहाँ पे देखिए साहिल ऑब्जर्व कर रहा है कि a huge flock of cranes are moving to this place. Okay, so can you help him to come to a conclusion? तो अब यहाँ पे उन्हें conclusion इससे क्या लेगा. तो यहाँ पे दो skills आ रहे हैं. देखिए, एक skill उसका observation हुआ, Sahil was observing. The other skill is inference. What does he infer? So obviously the inference could be, what do you think the inference is going to be? कि इसका inference ये होगा कि they are moving from that place to this place. यहाँ आने की वजह ये है कि the climate of that place during the winter is not suitable for these birds. I mean there must be a reason. तो अब ये लोग जब infer कर रहे हैं, जब ये inference ये conclusion पर पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों को अपनी reasoning use करना पड़ेगा. Okay, अगर if they don't know what exactly the answer of this particular question is, they'll be researching it. Fine. और ये लोग अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, और ज्यादातर ये क्वेश्चंस बच्चे खुद करना है. प्लीज डू रिमेंबर कि टीचर शुड नॉट प्रोवाइड द डायरेक्ट आंसर स्क्रिप्ट फॉर दिस. और ये सारे क्वेश्चंस ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड, राइट. एंड चाइल्ड शुड थिंक एंड चाइल्ड शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. इसमें यहाँ पे आपको चाइल्ड का ग्रामर लेवल नहीं देखो, यहाँ उसकी लैंग्वेज मत देखो, ये देखो कि बच्चा साइंटिफिक वे में थिंक कर पा रहा है, नहीं कर रहा है. उसमें साइंस के हम जो ये पर्टिकुलर लेसन में प्रोसेस स्किल बोल रहे हैं,
क्या वो बच्चे में वो रिफ्लेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बच्चा जब आंसर के लिए ही में ब्राउज नेट, ही में यू नो अडॉप्ट एनी मीन्स, आई मीन लाइक कोई भी एक मीन्स से ये कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उन्हें उसके रिसर्च स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उन्हें अपने टीचर से बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो टीचर से सीख रहा है, ओके, तो कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, या अपने फ्रेंड्स ये लोग ग्रुप्स में डिस्कस करके कर रहे हैं, तो इसमें पीयर लर्निंग हो रही है, ओके। ये सारी चीजें, इसको पीछे इतनी सारी चीजें जहन में रखते हुए ये चीजें बनाई गई है, फाइन। सो let me just make it clear, let me just emphasize it again कि assessment भी are higher order thinking questions है ये, जिसमें देखिए जो थिंकिंग होती है उसको दो ब्लॉक्स में, आई मीन लाइक दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है कि comprehension. Comprehension is considered to be a lower level thinking, which is just an understanding, okay. In addition to these other thinkings like evaluation है, critical thinking है, creativity है, logical thinking है, inductive deductive reasoning है, ये जो thinkings है ये higher order thinkings है। तो ये सारी higher order thinkings, almost every such thinking is involved in these questions, keeping those things in mind ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बच्चे जब खुद करेंगे तो सीखेंगे, ये चीज ज़हन में रखिए, याद रखिए कि ये जो ये एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट, एक फिलोसोफर की का कहना है, एक चाइल्ड परसेप्शन से, आई हियर आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, आई सी एंड आई जस्ट रिमेंबर, आई डोंट अंडरस्टैंड, I just remember it. I do, I remember. Okay, sorry. I do, I learn. Fine. तो ये एवरी साइंस टीचर के लिए बहुत जरूरी है। ये तीन चीज अगर आप समझेंगे तो आपको साइंस का पढ़ाना आपके लिए ओके दुश्वार नहीं होगा, बल्कि आसान हो जाएगा। क्योंकि दुश्वारी इसमें ये है कि यू कीप ऑन डिलीवरिंग द कंटेंट विद द चॉक एंड टॉक मेथड। वो चॉक एंड टॉक मेथड को छोड़िए, साइंस को हम ये बुक, टेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी जस्ट ए टूल, ये एक टूल है। आप टेक्स्ट बुक खाली पढ़ाएंगे, उसके आंसर्स देंगे तो बच्चे साइंस नहीं सीखेंगे। साइंस इज लर्न बाय डूइंग इट, राइट। तो आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं सुनता हूं, अगर टीचर सुना रहे हैं तो मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं। 40 मिनट का लेक्चर भूल गया मैं। I see and I remember. If teacher is doing or teacher is showing it through any other means, the child may just remember it. बच्चा बस याद रखता, उसका हाफिजा, उसकी मेमोरी अच्छी है, but child doesn't understand it. Child doesn't learn it. He or she will learn only when they do it. And so science is learned by doing it, not neither by seeing or hearing it. Fine. तो ये बच्चों को खुद को करने दो, आप आपस में ये क्वेश्चंस उन लोगों को ग्रुप बनाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाइए, ओके। लेट देम यू जस्ट थ्रो ए क्वेश्चन ऑन देम एंड लेट देम थिंक एन आंसर। और एक सब में अहम चीज क्या होती है जो अक्सर टीचर्स छोड़ते हैं, ये चीज मिस करते हैं कि दे नेवर गिव अ कंप्लीट अपॉर्चुनिटी एंड अथॉरिटी फॉर द किड्स टू थिंक। इसमें थिंक का जो वर्ड है ये बहुत मायने रखता है भाई। We are here to help them think, okay. It is not, okay, another philosopher rightly said कि science is not just filling up a pail, filling up a bucket with information, okay. Science is igniting minds, okay. It is sparking कि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डंप करेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला है, उसको थिंकिंग टाइम दीजिए। आप कोई सवाल करने के बाद, अक्सर हमारी क्लासरूम्स में क्या होता है कि फट से कोई बच्चा, अगर एक आधा बच्चा गिफ्टेड है, उसके कोई पेरेंट माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है, या बच्चा गिफ्टेड अबव एवरेज है, वो एक आंसर दिया कि टीचर खुश हुए, उसको अप्रिशिएट करे, उसको शाबाशी दिए और फिर आगे बढ़ गए, ओके। इससे कितना नुकसान है मालूम है कि एक दूसरे बच्चे अपने आप को इंफीरियर फील करेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आएगा वो बच्चों में। और दूसरी चीज, वो लोग कभी सोचेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि भाई हमको सोचने का टीचर मौका देती नहीं है या देते नहीं है, ओके। और व्हाई शुड वी थिंक एनीवेज, हम सोचना भी बेकार है, टीचर तो उनको ही शाबाशी देने वाले हैं। तो वी शुड अनलर्न दीज थिंग्स एंड प्लीज लर्न के गिव ए थिंकिंग टाइम। अब मैं आपको 3 टाइम शेयर करने वाला हूं, प्लीज ये नोट करें और इसको इंप्लीमेंट करें। थिंकिंग टाइम,
बच्चों को जब आप साइंस और मैथ्स पढ़ा रहे हो, गिव देम अ टाइम टू थिंक, राइट, एंड आफ्टर दे थिंक, ओके, तो उनको रेस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिए, ओके, टाइम फॉर रेस्पॉन्डिंग। अपने पास टाइम नहीं रहता भाई, बच्चे सोचते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कि एक दो से आंसर लिए, बाकी चलो अवॉइड करें, आगे इग्नोर करें और आगे बढ़े, या फिर बेल रिंग हुई कि वी वेंट टू द अदर क्लास, सो इट डिमोटिवेट्स देम, यू नो। जस्ट हैव अ वर्ड, एक सिंपल वर्ड बोलिए कि टुडे वी कुडंट डू इट, इंशाल्लाह आई विल टेक योर रेस्पॉन्सेस टुमारो, कांट वी से दैट, ओके। और एक हो गया थिंक टाइम, एक रेस्पॉन्स टाइम, उनको रेस्पॉन्स करने का टाइम देना। जब आप उनको थिंक करने टाइम दे रहे हैं तो उनके रेस्पॉन्स भी सुनिए आप, चाहे वो गलत क्यों ना हो, ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो आपको करेक्ट रेस्पॉन्स देंगे। और एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है वेटिंग टाइम, राइट। अभी वेटिंग टाइम क्या चीज है कि यहाँ पे अपन कोई लॉबी में बैठ के वेट नहीं कर रहे हैं, ओके, कोई एयरपोर्ट की लॉन्च में नहीं वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि जब आप when you have a class of 30 students or 25 students, all the students doesn't have the same caliber, हर एक की स्ट्रेंथ पोटेंशियल सेम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को ओके कुछ ज्यादा पोटेंशियल दिए तो किसी को कम, वो अल्लाह का निजाम है, ठीक है। अगर वो सबको बराबर देते तो सब साइंटिस्ट होते, सब आईएएस होते, तो फिर मेरी जगह यहाँ बैठ के कोई टीचर नहीं होता, आपकी जगह सुनने वाला टीचर नहीं होता। तो अल्लाह बेहतर जा रहे निजाम को। तो ये वेटिंग टाइम से मुराद ये है कि इट इम्प्लाइज एवरी चाइल्ड शुड गेट अ चांस टू रेस्पॉन्ड। हाउ डज इट गोज, यू नो, कि अब यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ और एक 4-5 स्टूडेंट्स है, लेट्स से, इवन आई एम अ स्टूडेंट, आई एम टेकिंग माई सेल्फ अ स्टूडेंट, ओके। अब समझो कि कोई स्टूडेंट अगर रेस्पॉन्ड कर दिया इमीडिएटली, ओके, उसको क्लिक हो गया, वो आंसर दिया। अब मैं भी सोच रहा था और आंसर मेरे पास आ ही रहा था, या आंसर आ गया था, आई वॉज अबाउट टू अटर इट, मैं ऐसा बोलने वाला ही था, वो दूसरा वाला मेरा साथी वो आंसर दे दिया और टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई, पैट की और कहा वेरी गुड, एक्सेलेंट एंड ऑल। तो मैं मिस हो गया ना, यहाँ पे मैं रह गया ना। डज इट मीन्स दैट आई डिडंट नो दैट? Can't I think in that direction as my friend has responded? Don't you think? Even I can, as a student, every student can. तो उनको वेटिंग टाइम दीजिए। आई मीन थिंकिंग का टाइम तो आप दे रहे ही दे रहे, उसके बाद आप एक टाइम स्पेसिफाई करिए कि 30 seconds, a minute, 2 minutes, it depends on the complexity, difficulty level, क्वेश्चन के हिसाब से वो टाइम दीजिए आप, ओके। और उसके बाद रेस्पॉन्स एक साथ मत रिसीव करिए, ओके। आस्क देम कि those who knows an answer, just ask them to raise their hand, okay, and see that every child gets an opportunity to respond, okay। तो ये 3 टाइम्स थे जो आपको याद रखना है। एक है थिंकिंग टाइम, थिंकिंग टाइम गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक। ये बच्चे जितना सोचेंगे ना, उनके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनेंगे, उनकी ओके सोचने की शक्ति उनकी इंशाल्लाह बढ़ेगी। फिर दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम, जो आपको देना है, उनके रेस्पॉन्सेस को सुनना है। तीसरी चीज, हर स्टूडेंट को टाइम देना है, ओके, और वो वेटिंग टाइम, यानी डोंट टेक ग्रुप आंसर्स, राइट। चलिए, गोइंग फॉरवर्ड, सो आई हैव डिस्कस्ड वन क्वेश्चन, विल मूव ऑन विद द अदर, देयर इज सो मच टू सी एंड यू कुड सी दैट के वी बिगिन एवरी चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग टाइटल कैसा दिए, देखिए, ओके, दिस लेसन का टाइटल ये हो सकता है कि प्लांट्स, ओके, प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स। यहाँ पे ये ज्यादातर हम प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स या फिर फंक्शन, उसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे प्लांट एंड इट्स पार्ट्स के बारे में बात हो रही। तो हम उसको प्लांट एंड इट्स पार्ट्स भी दे सकते थे ना। नोटिस करिए आप, देखिए क्या दिए यहाँ पे, आवर ग्रीन फ्रेंड्स। व्हाट डज इट सजेस्ट, यू नो, कि बच्चे जब पढ़ते हैं कि ग्रीन फ्रेंड्स, तो ओके सबकॉन्शियसली इट गोज इनटू देयर माइंड इज लाइक, बच्चों की अक्सर आदत होती है, 7 साल 6 साल की उम्र के बच्चे, ओके, आसपास जब झाड़ होता है तो उसके पत्ते प्लक करते रहते, फ्लास प्लक करते रहते, पत्ते तोड़ते, झाड़ खींचते, अपरूट करते, ये नेचर है, बच्चों की शरारत है। तो जब आप कह रहे हो कि आवर ग्रीन फ्रेंड्स, दे नो दैट कि वी शुडंट हार्म आवर फ्रेंड्स, वी शुडंट हर्ट आवर फ्रेंड्स। इसीलिए ये सभी चीजों को सोचकर ये नामें दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे सेक्शन है फॉर एवरी टीचर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रेफर दैट कि ए चाइल्ड बाय द एंड ऑफ ए लेसन ये सीखना है। Whenever you enter into a class week, you enter with the intention कि आज मेरे को ये बच्चों को सिखवाना है, पढ़ाना नहीं है।
सिखवाना है, सिखाना है बच्चों को, ठीक है। यूजुअली एक टिपिकल टीचर बेचारे जिसको प्रेशर होता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करो, वो एंटर होते हैं ये माइंडसेट से कि लेट मी कंप्लीट दिस, प्लीज लेट मी नॉट कंप्लीट दिस, ओके, लेट मी हेल्प माय चिल्ड्रन, माय स्टूडेंट्स टू लर्न दिस, ओके, व्हाट योर स्टूडेंट शुड लर्न, इट इज बीन स्पेसिफाइड हियर विथ एवरी लेसन, बिगिनिंग ऑफ अ लेसन आपको यहाँ पे 4 to 5 ओके क्रिस्प में प्रिसाइज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डेमोन्स्ट्रेट द एक्टिविटी, रिकॉग्नाइज, यानी आप ये लेसन कितना चलेगा, 4 क्लासेस 5 क्लासेस, उस हिसाब से। तो see that your children learn these things. Now, if you could see, ये जो I know का जो section है, this is actually a warm up. Okay, if you are an athlete, आप कुछ exercise कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो you don't directly, start doing that rigorous strenuous work. First you do a simple warm up or not, आप थोड़ी सी warm up करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक warm up activity है जिसमें we are helping the kids to connect their previous learnings के प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि ये सारी क्लासेस, अब मैं ग्रेड 4 के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 की उनकी जो लर्निंग है, दे आर ऑल बीन ग्रेडेड। ये एक लर्निंग प्रोग्रेशन, एक लर्निंग ग्राफ पे होते हैं, तो उनकी प्रीवियस लर्निंग को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं हम, ओके, बिकॉज चिल्ड्रन विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स इन द प्रीवियस क्लासेस, तो वो यहाँ पे पहले वार्म अप हो रहा है। तो ये वार्म अप और एक चीज क्या है कि एक प्रीवियस लर्निंग्स को कनेक्ट करना है, और दूसरा इंटेंशन ये है to set the tune for the new learning. I repeat again, to set the tune, to set the stage for the new learning. नई लर्निंग, ये आगे जो कंटेंट ये लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो इसका स्टेज आप यहां से सेट कर रहे हो। यू आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हियर, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, टाइप्स ऑफ ए प्लांट, यूजेस ऑफ ए प्लांट। तो बच्चे के जहन में होता है कि हाँ, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। Fine. So I mean, like, don't miss any of these sections. ठीक है? Every section is, very, very crucial for the learning. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने ऑलरेडी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माई टॉक आई सेड दैट कि ये जो हाईलाइटेड कलर चेंज है, ये कुरानिक वर्स है, ओके। आयत का मतलब होता है निशानी, अल्लाह की निशानियों को बच्चों को हम समझने में मदद कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरह की होती है निशानियां, एक कुरानिक आयत से एक निशानी है, एक यूनिवर्स की अंदर जो एक क्रिएशंस है, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग, उसमें भी अल्लाह की निशानियां हैं। तो वो तमाम निशानियों को हमने यहाँ पे फोकस किया है, ठीक है। तो उस पे बच्चे रिफ्लेक्ट करना है। ये वन वे सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए क्लास में। अगर ये वन वे कम्युनिकेशन है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ओके, वी कैन नॉट रीच द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसको आपको ये मैटर को, ये कंटेंट को, कोई चाइल्ड से रीडिंग कर रहा है, आप उसको समझा दिए, ये नहीं होना है। आपको इसको लेकर क्लास में एक 2 वे कम्युनिकेशन, एक डिस्कशन स्टार्ट करना है, आपको डिस्कशन इनिशिएट करना है। आप उससे सवाल कर सकते हैं। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो पेज है, इससे रिलेटेड आप एक बच्चों से सवाल करिए। देखिए, इट इज टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ लॉन्ग बैक, इट इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी, ओके, द नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, ओके, ये तमाम चीजों के। तो आप बच्चों से ऐसी एक थ्रो अ सिंपल क्वेश्चन, बेटा कोई हिल स्टेशन जाकर आए क्या? डू यू रिमेंबर योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू विजिटेड इट? If you haven't visited, if you did not get an opportunity for that, have you ever seen it on any screen पे कहीं देखे क्या? तो बच्चे खुल के आते हैं, yes ma'am, yes sir, I have been there, I have seen this, isn't it? So then they एक इंटरेक्शन शुरू होता है, कन्वर्सेशन शुरू होता है, उसके जरिए जब बताइए कि अगर अगर बच्चे नहीं बोले, आप बताइए I have been to so and so place, वहां पे ऐसा हुआ, वहां ऐसी पहाड़े थे, इतनी इतनी ऊंचे थी, ओके, इतनी खूबसूरत मंजर थी, एंड देन ओके ब्रिंग इट डाउन, ओके, नैरो इट डाउन एग्जैक्टली टू व्हाट यू वुड लाइक टू कन्वे, फाइन। So this is how it has to be delivered, and not by chalk and talk delivery method से नहीं करना है इसको इंशाल्लाह ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग है यंग साइंटिस्ट, ओके, तो ये हेडिंग के तहत जो कंटेंट है, ये सेक्शन है कि it's a small activity kind of thing which helps children experience their learning. In other words, I could say it is an experiential learning कहा जाता है इसको,
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन इन दिस, के collect few samples of leaves and observe them using a magnifying glass or a hand lens. We are asking children to observe it, right? And then write your observations in your notebook or a scrapbook, wherever it is possible, and then discuss it in the class. ये section, please do not leave this. ये जो सेक्शन प्रीवियस पेज, आई वेंट टू द प्रीवियस पेज अगेन, तो ये तो कंटेंट मामूली डिस्कशन का है। इसके बाद बच्चे ये ऑब्जर्व करना है। अगर बच्चे जब ये कर पा रहे हैं तो इट्स अ लर्निंग। अब यहाँ पे अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि एवरी, यू कुड से दैट कि एवरी चाइल्ड डजंट हैव अ हैंड लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास कहां से लाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आस्क देम टू ब्रिंग सम लीव्स दैट दे कैन ब्रिंग, डिफरेंट लीव्स, ये तो ला सकते हैं ना भाई। उसके बाद स्कूल में तो आपके पास एक हैंड लेंस होता है, आपके पास होगा, या फिर कोई एक चाइल्ड के पास होगा, 30 में से एक बंदे के पास तो होगा। तो देन यूज दैट वन एंड ओके, लेट एवरी चाइल्ड ऑब्जर्व दैट। आप, यू कांट से दैट एवरी चाइल्ड डजंट हैव, आई मीन लाइक एवरी चाइल्ड हैज इट, कोई एक तो मिल जाता है। तो आप सोचिए, अगर बच्चा खुद लीफ को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके अंदर उसके इमोशंस कैसे रहेंगे? ओके, सो कैसे लगेगा? that is, developing the scientific attitude, scientific thinking, यहां से शुरू होने वाली, उसकी बुनियाद यहां से होगी, राइट? हमारे बच्चे आखिरत और दुनिया दोनों में भी कामयाब होना है, फाइन। तो बच्चा जब ऑब्जर्व करता है उसके बाद में आप उसको रिलेट करिए। अगर क्लासरूम को आप थियोरेटिकल बनाने से पहले ज्यादा अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अब ये गौर करिए इस पे कि यूजिंग ए हैंडलेस वी आर ऑब्जर्विंग इट। जब बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा ये जो मिडिल में जो बली वाली लाइन जा रही है वो क्या है, आप उसको बोल रहे हैं देखो, डू यू नो इट्स ए मिड रिब। ओके, ये जो साइड में जो लाइंस आ रहे हैं लीफ में, ये है साइड वेन्स। So they'll remember it better by doing it rather than looking, okay, seeing it in a book, उसको बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में, ओके, ये पेपर पे देखने से ज्यादा या वीडियो में देखने से ज्यादा वो लोग जब करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है? तो ये इंटेंशन से ये किताब डेवलप की गई है, एंड प्लीज सी दैट के यू डू इट इन दैट वे, फाइन। Now I'll help you to understand the other one more section here on the page 11. अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक और सेक्शन है आपको नीचे, सेल्फ असेसमेंट। क्या है वो? सेल्फ असेसमेंट। What do you think self assessment refers to? सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? अपने आप को एक चाइल्ड असेस करेगा, ओके? Here child is being, देखो NEP talks about these days, NEP कह रहा है कि assessment at different levels, assessment सिर्फ टीचर से नहीं होगी, ओके? assessment by the student himself or herself, खुद अपने आप को असेस करना है। पेरेंट असेसमेंट करेंगे, पीयर असेसमेंट अपना फ्रेंड अपना साथी असेस करेगा, ठीक है? फिर टीचर असेस करेंगे। जब उसको कह रहे हैं कि 360 डिग्री हॉलिस्टिक लर्निंग, ओके, इस तरह प्रोग्रेस कार्ड बनने वाला है अभी, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सभी का असेसमेंट, तो उसकी बुनियाद हमने काफी सालों पहले लग दी। एनईपी तो 2020 में बोला, हमारी ये बुक में तो हम तो 2012 से कर रहे हैं कि देयर शैल बी अ सेल्फ असेसमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज आज एनईपी में आपको पाई जा रही है। आप देखिए यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट, देखिए सेल्फ असेसमेंट सेक्शन का इंटेंशन ये है कि बच्चा फॉर्मेटिवली अपनी लर्निंग को खुद असेस करे इन द मिडिल ऑफ द कंटेंट। और ये बच्चा, देखिए ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, सिंपल है कि जस्ट दे हैड टू मार्क इट, राइट? उनकी अंडरस्टैंडिंग को वो लोग असेस करें। इफ वो लोग खुद करेंगे विदाउट टीचर्स गाइडेंस, विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, तो जब ये खुद करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एक नजर देखें। अगर आपको लगा कि एक चाइल्ड इज अनेबल टू डू एंड विदाउट फियर है, ठीक है, या कोई इनिबिशंस नहीं है, कोई डर नहीं है कि इसमें मार्क्स आने वाले हैं, वो होने वाला है, तो जब बच्चा अगर कुछ मिस्टेक किया तो यू शुड सी दैट you have to, as a teacher, you had to change your approach of learning। आपको चेंज करना है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज नहीं किया, fine? So this was the intention behind self assessment. I'll just re-emphasize it, let the student do it on his own, please। आप आंसर्स मत प्रोवाइड करिए, इसके सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद करेगा। क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन कहां डिस्कस करना है? ये जो प्रीवियस सेक्शन में असेसमेंट बी था, उसको आप बैठकर क्लास में उनसे ओरल डिस्कस करिए एंड लेट देम राइट इट। और ये जो असेसमेंट ए था, इसके आंसर्स, इफ ए चाइल्ड राइट्स इट्स वेल एंड गुड, इफ ए चाइल्ड डजंट देन यू प्रोवाइड दैट, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर।
अब देखिए जो पिछली हम एक्टिविटी यंग साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए दोबारा और एक बार ये सेक्शन है यंग साइंटिस्ट. इट्स एन एक्टिविटी सेक्शन, इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड सिंपल मटेरियल. हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि भाई देखो कि हमारे कुछ स्कूल्स हैं कि बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं. ओके, दे हार्डली फाइंड यू नो things to conduct these activities. Keeping that in mind also we had developed this. अगर आप यहाँ देखें potato, okay, और iodine solution. Iodine is easily available. You can't say like iodine नहीं मिलता. भाई आपके स्कूल के करीब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां चले जाओ तो आपको आयोडीन थोड़ी सी वो दे देगा. अगर वो बोलोगे कि भाई we have to conduct a small activity, of course they'll help you out in that. So using this activity कि we are helping a child to understand starch क्या चीज है. ठीक है, ये स्टार्च ऐसी चीज है कि बच्चे जब देखेंगे तो समझेंगे ना भाई. अब आप बच्चों को बोलोगे कि यू नो एयर एंड ऑल, भाई कि एयर देयर एग्जिस्ट एयर यू कैन, तो बच्चा सवाल करेगा कि एयर दिखती नहीं है ना. अब बोलोगे कि ये वायर में करंट है, ये वायर में करंट है, तो बच्चा बोलेगा कि करंट आई कांट सी, वेयर इज इट. तो उसी तरह जब स्टार्च आप बोलोगे कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगर आप बोलोगे कि पोटैटो में स्टार्च है, एप्पल में स्टार्च है, तो बच्चा बोलेगा कि मेरे को तो स्टार्च नहीं दिखा, मैं तो आलू खाता हूँ. आई ईट कैरेट, ओके, आई च्यू एप्पल, बट वेयर इज द स्टार्च. तो उसको स्टार्च आप ये आयोडीन डालकर बताइए ना, एंड लेट अ चाइल्ड डू इट अंडर योर सुपरविजन. इंशाल्लाह बहुत दुआ मिलेगी आपको. ओके, इफ यू हैव द किड्स डू दिस राइट. नेक्स्ट अगेन, अब ये देखिए कि ये जो एक्टिविटी है इसका जो प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है, दिस इज बीन रिटन एट अ वेरी हायर ग्रेड. ये हायर ग्रेड्स पे लिखा जाता है. ओके, इवन सीबीएसई के करिकुलम में यू विल फाइंड दिस ओनली इन द हाई स्कूल करिकुलम में मिलेगा आपको, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा. आई चैलेंज यू इंशाल्लाह कि अब ये देखिए ये जो प्रोसीजर है, ओके, इसके कंक्लूजन है, ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो स्टेप्स है, यू ओके, हाउ एन एक्टिविटी एन एक्सपेरिमेंट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, कि एक्सपेरिमेंट बच्चे कंडक्ट करने के बाद उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी रिसर्च को, अपने एक्टिविटी को, ये जो बताया गया है. ओके, this is being usually done at a higher level, but we are seeing, okay, we are taking the pain that okay, our children should learn it from this grade, from this primary level. Fine, चलिए. देन गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की साइंस को साइंस से सीखने के साथ साथ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी की हिकमत वाली बातें भी यहाँ पे साथ में मौजूद है. इफ यू कुड सी, एंड दोज आर बीन हाइलाइटेड इन द ग्रीन कलर. ओके, देखिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट मशरूम इज अ गुड क्योर फॉर द आईज. इट्स आल्सो अरस पैरालिसिस. तिब्बे नबवी से इलाज. ठीक है, तो ये भी बच्चा ये एज में सीख रहा है. ओके, लाइक देखिए, मैं अगर सोचिए कि दिस एग्जिस्टेड इन आवर स्कूल टाइम, अगर ये हमारे दौर में इस तरह की किताबें होती तो कैसे माशाल्लाह इसके क्या फायदे होते हैं. अब यहाँ देखिए नया सेक्शन, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं की वर्ड्स. तो देखिए ये कोई इंग्लिश के मीनिंग वर्ड मीनिंग्स वाली वोकैबुलरी नहीं होती है, ये है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी. देखिए एवरी सब्जेक्ट हैज ए स्पेसिफिक टेक्निकल जार्गन. हर सब्जेक्ट का अपना टेक्निकल जार्गन होता है जो ओके जो उसको स्पेसिफिक है. तो वो टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे सारे दिए गए हैं. ओके, यू कैन यू नो guide students to refer to this. हर लेसन की एंडिंग में you will find this technical jargon. Okay, जैसे green plants, what exactly green plants refers to. It is not just green color of it because of chlorophyll. Now what is a chlorophyll, what stomata is, what are veins in this context. तो ये टेक्निकल जार्गन जो साइंस से रिलेटेड है, ये सारा जार्गन आपको ये कीवर्ड के सेक्शन में मिलने वाला है. फाइन. अब उसके बाद यहाँ देखिए आप, एक माइंड मैप है. ये माइंड मैप क्या है कि एक कॉन्सेप्ट मैप है, एक समरी है, एंटायर लेसन का जिस्ट यहाँ पे माइंड मैप की शक्ल में आपको प्रेजेंट किया गया है. तो ये माइंड मैप की शक्ल में क्यों है, ये तो ओके स्टेटमेंट्स भी हो सकते थे, लेकिन माइंड मैप इसीलिए है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप देखें तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जिसको नर्व सेल्स कहा जाता है, जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है. हमारे ब्रेन में जो स्कीमास होते हैं, जहां पे मेमोरी स्टोर होती है, जिसको स्कीमा कहा जाता है, मेंटल स्कीमा. तो वो मेंटल स्कीमा
ओके आज साइंस कहती है कि एनालिसिस से ऐसे ही होती है, इसी तरह नई चीजों की को एसिमुलेट करना, ओके चीजों को एकोमोडेट करना ब्रेन में ऐसे ही होता है, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड ये फैक्ट्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फाइन, तो सारे लेसन का जस्ट एक शॉर्ट मैप में दे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि माइंड मैप है। ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द असेसमेंट्स विद यू। प्रीवियस लेसन में असेसमेंट्स कम थे, ज्यादातर वहां पे हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, क्योंकि वहां पे आपको पूरा लेसन स्किल बेस्ड था, साइंस प्रोसेस स्किल्स, तो उसको हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में नहीं पूछ सकते थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्रिहेंशन वाली है। असेसमेंट ए इज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड द असेसमेंट बी डाउन यू कुड सी दैट इट्स ऑल the higher order thinking skills which we try to relate it to the real life everyday life और बच्चों की सोच की एतबार से है। ठीक है, let me just read one more question here, the last question down. Sahil brought some bread and kept it in the kitchen. He forgot that he kept the bread, and after a week he went to take the piece of bread. What will happen to the bread? Is it healthy for him to eat it? ओके, तो बच्चा सोचेगा कि भाई एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते वाली ब्रेड, कैन वी हैव इट और नॉट? तो व्हाट चाइल्ड इज डूइंग, यू नो, ही इज थिंकिंग क्रिटिकली। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, सिंपल वर्ड्स में। और ये आंसर ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होने चाहिए। ओके, बड़े बड़े आंसर्स लाइक 10 लाइंस 15 लाइंस वाले नहीं भाई, 3 लाइंस 2 लाइंस पे बच्चा अपनी खुशी से ओके अपने वर्ड्स में बच्चा आर्टिकुलेट करता, अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो काफी है। फाइन, और उसके साथ साथ ये लास्ट पेज है, आई एंड अप माय सेशन। फाइन, यू विल बी गिवन ओके फ्यू मिनट्स टू रेज योर कंसर्न्स एंड क्वेरीज एंड डिस्कस इट। यहाँ देखिए एक सेक्शन है आर्ट्स इन साइंस। आर्ट्स इन साइंस इज मेंट फॉर आर्ट इंटीग्रेशन। भाई आर्ट का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइंस के जो सेवरल स्किल्स है उसमें से एक स्किल होती है ड्राइंग स्किल, आर्ट स्किल, क्योंकि साइंस को टेक्स्ट से ज्यादा ड्राइंग से कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो भी तो डेवलप होना जरूरी है बच्चों में। जब हम बोल रहे हैं कि यंग साइंटिस्ट, तो उसके लिए एक सेक्शन है जो कि बच्चों को यहाँ पे करना है और आपको करवाना है। फिर टेक होम एक्टिविटीज है यहाँ पे। और देखिए हमारा कंटेंट फिर अगेन जस्ट साइंटिफिक नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड करिकुलम कहलाता है, वैल्यू बेस्ड सीरीज है। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज को रीएम्फसाइज किया कि हमने क्या सीखा कि प्लान। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी नसीहत वाली प्यारी बात है कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये लेसन के जरिए हमने समझाया कि प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स पर प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, and they support each other, natural balance ऐसा है। so we as humans must also help each other। तो as human beings we must also help each other, क्योंकि ये बच्चों की सोच क्या होती है ये उम्र में, कि थोड़ी सी उम्र, ये इस उम्र में बच्चों की सोच अक्सर पॉजिटिव होती है, तो उनकी जहन साजी करने के लिए ये वैल्यू काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके साथ हमारे पास और भी सेक्शंस है, बट अभी टाइम डजंट परमिट अस टू कंटिन्यू। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव मोर सच सेशंस। ओके, तो तब हम ये सारी चीजें फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द सेशन फॉर ओपन डिस्कशन फोरम, सो यू ऑल विल बी ऑन अ सॉफ्ट म्यूट, so you can raise your queries through chat box, and inshallah we'll be obliged to respond to you inshallah. So we have allowed you to unmute you, so you can raise your concerns. There was a concern here ke Assalamu alaikum, mashallah sir, you are explaining very nice. Can I request you to share me this creative slideshow? Okay, no issues. We have been recording these sessions. You will get the links inshallah. Feroz sir से आप coordinate करिए, inshallah Feroz sir will share you जरूर, बिल्कुल करेंगे। And please feel free to reach us. कुछ भी concerns है तो please पूछिए, हम यहाँ बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए इंशाल्लाह।
विद रिगार्ड टू द टेक्स्ट बुक भी पूछ सकते हैं आप। ये ओके, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको कैसे पढ़ाया जा सकता है। You all can, those whoever want to, they can unmute themselves and even ask us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर नवाब बोल बिहार से। जी सर फरमाइए। द थिंग इज के आप लोगों ने जो कंटेंट किया, जो ट्रेनिंग चल रही है, जी सर, उसमें आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, कंटेक्स्ट में दिया जा रहा है बच्चों को। जी बिल्कुल सर। हाँ, दैट मीन्स के अगर किसी चीज को करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट हो, व्हाट और हाउ, तो आप पहले वाई बता रहे हैं, वाई क्यों कर रहे हैं इस काम को, और क्या कर रहे हैं, राइट? जी सर। मेरा ये कहना है कि सर इसमें एक चीज अगर और जोड़ दी जाए, जी सर, दैट मीन्स हाउ, जी कि भाई इस क्लास में इस चैप्टर को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, पहले क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो बच्चे हैं या जो बच्चे, जिन बच्चों की किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जी सर, इट इज प्री प्राइमरी लेवल, राइट? जी सर। और दो इट इज अ नेग्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जी, बट दिस इज द मेन, आई बिलीव मेन पोर्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एक बात कही कि बताना नहीं है, सिखाना है। बिल्कुल। हमारे अपने टीचर्स को जो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनको मैं भी यही कहता हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। हो सकता है कि आपको हाथ भी पकड़ना पड़े उनको सिखाने के लिए, बेशक हाथ पकड़ के सिखाना है। तो हमारा ये कहना है कि अगर इस चैप्टर को हम लोग अगर कितने लेक्चर्स में डिवाइड करें, ये अगर बता दिया जाए, और फिर पहले कौन सी चीज करें, जैसे कि हर बुक में, हर चैप्टर में, हर लेसन में कुछ टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल जार्गन और न्यू वर्ड्स होते हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या होती है स्पेसिफिक, तो उसकी जो है लोकल लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स बता दिए जाए बच्चों को। एक दूसरी जो चीज है, हमारे बच्चों को रीडिंग हैबिट भी जनरेट करना है, कि भाई रीडिंग हैबिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि डेवलप होना चाहिए। इन्हीं दरमियान हेजिटेशन और बच्चे को खड़े होकर रीड आउट कराना, और टीचर को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना कि भाई इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें। तो हो सकता है कि टीचर को मल्टीपल टाइम्स एक चीज को कहना तो पड़े, बट लेकिन इससे बच्चे याद कर जाएंगे। दैट इज ग्रुप टीचिंग विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। जी सर, जी। और जो तीसरी चीज है कि भाई इसमें जो एक्टिविटीज है वो भी उसी मतलब सिनेरियो का पोर्शन होना चाहिए जो कि हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बुक का पोर्शन, कि ये एक्टिविटीज में एज ए प्रोजेक्ट किया जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग व्हाट और हाउ, वाई तो बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है। और अगर हम लोग थोड़ा हाउ भी जोड़ लें, जिसपे कि आप लोग अथॉरिटी रखते हैं। जी सर। सर फेरोज सर विल, sir, Assalamu alaikum. Yes, sir. See, regarding this only, I'll give you the answer. See, now from this year, coming academic year onwards, what we are doing, we are creating a day-wise plan, like day 1, day 2, rather than sending the day-wise plan on monthly or annual basis. So what we thought of, when we start a curriculum, we will divide the entire session in the classes, day 1, day 2, day 3, where teacher have a clear-cut idea that whatever my first period, what are the content I have to teach. If that period is missed, she has a facility to customize it. Because last time our day-wise plan was different based on, geographical condition, area, north, south, west and all. So now we are going to create the day-wise plan based on the day 1, day 2 kind of concept, where no issues of irrespective of which zone you are there. And you are rightly pointed out, whatever the activities. So I don't know whether you've gone through my last mails.
This year onwards, we are sending projects and activity documents as well. So that entire that particular lesson, what are the different additional activities you can conduct students. So that is what in my last 14, 15 emails I have sent to each one of you, where there are a lot of project-based activities and other activities also has been planned. And simultaneously, we are creating some more this kind of activities which even connect with the outside society. You might have heard about UNSDG, Sustainable Development Goals. So now we are trying to connect this with society also, where student is learning something into the classroom and indirectly they are practicing in our society as well. So inshallah, your feedback already, I am in touch with you. So inshallah, whatever the last year experiences we have learned during COVID, after COVID, we got a clear idea okay, what kind of approach we have to put to make this theoretical concept into practice, especially when we talk about specially science. So this will be taken care from this year onwards. Yeah, Firoz bhai, very nice inputs sir, because most of I have explained Nawab sir, the why part, because we been the people behind developing the content. So I thought of better discussing or sharing the intentions. उसके पीछे जो नियतें थी, जो हम लोगों का जहन था, मैं महसूस किया कि वो पहले आपके पीछे रखे कि क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या है. अब रहा सवाल how to deliver it. इंशाल्लाह जैसा फिरोज सर ने बताया, so इंशाल्लाह he is a man of words, कि he'll keep his words and he'll deliver all that you want, इंशाल्लाह for sure. और समीउद्दीन साहब आपसे कंसर्न आया कि आपने सब्जेक्ट स्पेसिफाई किया, नोटिफाई किया कि which subject is will be discussed and can you just let us know which class it would be. Inshallah we'll take this into consideration. Actually समी साहब के इतनी सारी चीजें हैं, तो I thought of like where to start from. Assalamu alaikum. See, when we have taken this initiative for this online, so what we thought of this first couple of weeks, let us have a complete overview rather than focusing on one subject. But inshallah, when academic year starts, when we give the new session starts, so that time, we'll have a focused training on particular topics, and well in advance, we'll be sharing you that like lesson planning, day-wise planning. So sometimes, I'm sorry to say this, but sometimes I feel that day-wise planning, everything, my teacher are very much capable of doing so. But if you give them the idea how to classify a lesson, like Vasi sir was sharing, each and every concept is clearly mentioned on a textbook. So this month, what we thought of, when we are beginning something, let us have a brief, what is the idea, what is the learning objective, and what are actually the concept and vision and mission by creating these books. So in that cause only, we are just overviewing it. So you can see in my invite, clearly it is just an overview. And inshallah, from coming sessions, when we finish all these overviews of subject, then Latif sir may address all of you. Then later on, we will have a focused training where well in advance we'll decide a topic, and inshallah 1 hour online session will be taken care by us. Hope this answer your question. Thank you. One more thing I would like to add. I have seen a document which says 12. नवाब मियां किसी और को बोलिए बात करने दीजिए. नवाब मियां तो अपने से. Assalamu alaikum. So other participants, please feel free to reach us now itself. If any of you have any concerns, we will be very obliged to respond it here, inshallah. Contextually, अगर कुछ है तो. Else, we had to wind up at 3:30. And Samiuddin sahab, inshallah, we'll take this into consideration. As you said, we'll even, जैसा फिरोज खान साहब ने बताया कि this is a general session. Okay, going forward, हम specific class से specific topic के बारे में आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे. I could understand the pain, so that I think you would ask the teachers to sit and take these things particular class के शायद आप इस intention से पूछे तो next time बताएंगे इंशाल्लाह. अब ये तो general था क्योंकि अब grade 3, 4, 5 का जो science है वो all interconnected है. अब यहाँ पे भी मैं तो एक जनरल बात किया. यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट है, यहाँ पे जो यंग साइंटिस्ट है, दिस इज देयर इन ग्रेड 3, दिस इज देयर इन ग्रेड 5 एज वेल. ठीक है, बट वील मेक इट वेरी स्पेसिफिक एज यू राइटली सेड.
Okay, next time onwards we'll see that it goes class wise, inshallah. If there are no questions, we can end up the session. Inshallah, we'll be meeting next week, inshallah, for sure. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह नियतों के एतबार से बच्चों तक हम इस चीज़ को पहुंचा सके, इसमें किसी तरह के चैलेंजेस ना आए और हम एक दूसरे से लर्न करें और सीखें कि हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये जो उम्मत की जिम्मेदारी दी, उम्मत के नौ निहालों की, हम उसको अल्लाह के पास कल हम ठहर सके और अपना हक अल्लाह से ले सके कि इसका all the participants for spending their valuable time. Fine. So inshallah, still if there are any queries, please reach to us, and our spokesperson, the one-man army, is Feroz Khan sir. So inshallah, all your queries will be answered if there are any. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum.